नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। So now we are approaching January the 22nd, which is Yes. Monday. Today is already Wednesday. आज बुधवार है, सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा पूजा है और माशाल्लाह जबरदस्त 50 देशों में, पूरी दुनिया के 50 देशों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो होने वाली है अयोध्या में, वो मनाई जाएगी। एग्जैक्टली सर। बहुत भव्य तरीके से, हर जगह पे त्योहार है। यस, बिल्कुल सर। लेकिन सर मुंबई में छुट्टी नहीं है। I have a problem. Why haven't they declared a holiday? अरे भाई दिवाली की छुट्टी होती है, बाकी सब लोगों की छुट्टी होती है। वैसे आप कह रहे हो घर में दिवाली मनाओ, तो छुट्टी दो यार। क्या कर रहे हो? मतलब any event. That's something for for a later date. But I tell you what, I'm very happy. I'm really and truly happy that this is happening. I'm really and truly happy that after 550 years, Sri Ram, rather in his rupa, in his form as a child, in his childlike form, is returning to a magnificent temple. Now do remember, Sri Ram was already there. He's always been there. और जैसा कि बाकी सब लोग बोलते हैं, रोम रोम में राम है, कण कण में राम है, दिल में राम है, हर जगह पे राम है। हाँ, इतने बड़े भव्य मंदिर में राम नहीं थे। अभी क्योंकि मंदिर बन रहा है इसलिए राम है। प्रदीप जी बिल्कुल, कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, कण कण। तो ये लगातार दिल दिमाग हर चीज में, हृदय में राम, हर जगह राम है। एंड द स्लोगन इज राम आ रहा है, राम आ रहा है। अयोध्या सजा हुआ है। 16 तारीख कल से जो कंटिन्यूड फेस्टिविटीज till 22nd, continuous festivities in अयोध्या। रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम, रोज ना कुछ कार्यक्रम। पूरा अयोध्या सजा हुआ है, पूरा उत्तर प्रदेश सजा हुआ है, पूरे देश अब सजेगा राम के लिए। राम 550 साल के बाद जो आ रहा है, 550 years, प्रभु राम is coming back to his own temple. That is something. Actually, 496 years. years. But since Amit Shah and JP Nadda ने पहले से शुरू कर दे 550, तो everybody is following 550. इनफैक्ट रिसेंटली सदगुरु जगी वासुदेव बोले 550 साल के बाद राम आ रहा है। It's reason for anybody to celebrate. There has to be no negative words, no negative thoughts, no negative utterances at all, because this is time for celebration. 550 साल का संघर्ष and लगातार उसके बाद प्रभु राम आ रहा है। I love a celebration, Pradeep ji. Any kind of celebration, anywhere. I love a party. We have to have a party all the time. That's it. Right, and we'll talk more about that subject. And by the way, that subject of the inauguration of an unmade temple, of an unfinished temple, by the way, has been laid to rest. Do remember, in 1951, the Somnath temple was inaugurated by our first president, Rajendra Prasad Sahab. Rajendra Babu ने सबसे पहला जो सोमनाथ मंदिर था उसका भव्य उद्घाटन किया था, and it was not complete. The temple was completed in 1956. All that is required is for the Garbhagriha, for the sanctum sanctorum to be completed, and that's it. That's all that you require. So this entire controversy कि भाई अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, प्राण प्रतिष्ठा पूजा नहीं होती, that is facetious. In any event, we'll talk about that later. At the moment, Congress has to be careful about what it, where it leads to, because any utterances from somewhere and they latch on to it and say. Personally, I think, Pradeep ji, Congress has missed a trick over here. They've missed an opportunity here. They had a huge opportunity for a national reconciliation. Rightfully speaking, even if Sonia ji didn't want to go, she's not well. Even if Khalge Saab didn't want to go at this particular time, they could have sent a full delegation of other Congress leaders. They should have gone there and they should have said, hey, listen, this is a festival of unity. This is a festival of national unity. We are all in this together. That's what they ought to have done. But they didn't. In any event, that's up to the Congress. And we've been advising the Congress now for a long time as to what they ought to be doing. They're not listening. That's their problem, not ours. Now, at the moment with us, let's switch to what we really care about, which is television, which is television soaps, which is the absolutely booming industry of the OTT platform. We have Lucky Mehta, the amazing actress from JAANAKI, SUBHASH GHAI JAANAKI, right now with us. Lucky Mehta ji, namaskar.
Namaskar. Namaskar. How are you? How are you? Oh God, are you lucky, Mehta? Are you sure? Yes. Yeah. You look as though you're Out of school. out of school or something. I mean, are you what? You're in the 10th or 11th. Where? No. Looks like it. Still studying. Yeah. बच्ची Thank पढ़ you. रही है. You could be my granddaughter. Look at that. Oh wow, It's a, lovely. so Lovely. sweet of you, so kind of you. So you're working for Subhash Ghai's Janki Yeah. and getting tremendous reviews from all over the place. Could you tell us how you met Subhash Ghai? Subhash Ghai से पहली मुलाकात कैसे हुई? कहाँ मिले? क्या उधर मिले अपने वो फिल्म सिटी में जो उनका इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मिले या कहाँ पर मिले? Whistling जी Woods. बताएं. Whistling Woods में where did you meet him? बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही डिफरेंट तरीके की हमारी मुलाकात हुई थी. मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि समथिंग वाज एंडिंग एंड दिस थिंग वाज कमिंग टू मी. इट वाज लाइक दैट एज माय फादर वाज इन आईसीयू एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन फॉर दिस शो जानकी. और बस सुनते ही पापा ने एक ही शब्द बोला कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तू जा, कुछ भी हो, जस्ट गो एंड मीट, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. मिल उनसे. और क्योंकि बचपन से मेरा सपना था कि मैं सुभाष घई सर के साथ काम करूं एंड मैंने ये चांस मिस नहीं किया. और मैं उनसे मिलने के लिए आ गई और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया. वेरी वेलकमिंग, वेरी स्वीट पर्सन ही इज. And I must say he is a wonderful person, very down to earth. He respects everyone. So it is one of my, I would say कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी उनसे मिलना. और मेरे लिए एक ये एक सौगात बन गई. तो दो मतलब आपको ऐसा लगा कि आपके सर के ऊपर भगवान का हाथ है कि जहाँ पर आप जा रही हैं हमेशा आप सफल हो रही हैं, आपको रोल्स मिल रहे हैं. जैसी आप मुंबई आई, बॉम्बे जैसी आप लैंड करी, तब भी मैंने सुना आपको एक रोल मिल गया फटाफट. ये क्या हाँ है? जी, मतलब जी. दिस इज अमेजिंग. लगता है ऊपर से अपनी किस्मत लिखवा के आई हैं आप. जी. हो सकता है. एंड मेरे पापा इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मालूम है हमेशा मेरे साथ है और हमेशा रहेगी. आपने कहा शायद. आपके पिताजी, आपके पापा वो आईसीयू में थे उस वक्त जी जब आपकी मुलाकात सुभाष घई जी से हुई. जी, मैं फ्लाइट लेकर आई थी. सो व्हाट हैपेंड टू हिम? क्या हुआ? आप कहाँ से आई थी फ्लाइट लेकर के? पहले तो ये बताएं. आप राजस्थान से हैं. राजस्थान के कौन से शहर से हैं वो जरा बताएं. अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज. जी, मैं वैसे कोटा से हूँ, लेकिन कोटा. जी Okay. कोटा एजुकेशनल सिटी है. सिटी ऑफ कोचिंग क्लासेस. जी. एग्जैक्टली. तो मैं वहीं से हूँ, लेकिन पापा के इलाज के लिए हम लोग जयपुर गए हुए थे. जी. और वहीं पे वो एडमिट हुए, बट उनका काफी टाइम से वो बीमार चल रहे थे. तो उनको मल्टी फंक्शन फेलियर हो गया और मल्टी ऑर्गन फेलियर. जी. या एग्जैक्टली, सॉरी. सो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया और इसी वजह से आई डोंट नो, वो रिकवर कर ही नहीं पाए. और मैं जब सुभाष घई सर से मिलने गई, उसके बाद जब 3-4 दिन बाद शूट के बाद वापस मुझे कॉल आया कि पापा इज नॉट दैट वेल, तो मुझे अर्जेंटली फ्लाइट लेके वापस जयपुर जाना पड़ा. एंड बस मैं इतना ही कहूंगी कि I lost everything in my life, and इस बीच सुभाष घई सर, as he is the sweetest person, very respectable to me, उन्होंने मुझे कॉल किया and he said don't worry, we will wait for you, आपके पापा ठीक हो जाएंगे. He called by himself. उनके जो क्रिएटिव हैं उन्होंने मुझे कनेक्ट करवाया उनसे कॉल पे और उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं. जब तक आप नहीं आएंगी शो होल्ड पे रहेगा, हम आपका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे. यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. जबरदस्त. जी बिल्कुल. And the other biggest inspiration in life, you say, is Rupali Ganguly. Rupali Ganguly has helped you a lot in your career. You love her for that. Unforgettable. I love her. Yeah, I love her. I respect her. She's a wonderful person. मैंने सिर्फ उनके साथ एक एड फिल्म किया था. स्टिल रिमेम्बर, आई वाज, जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई पहुंची और मुझे एक शो मिल गया था, बड़ा फेमस शो था, ससुराल सिमर का. विद इन 15 days आई वाज डूइंग दैट शो. एंड इन द मिड आई गॉट कॉल फॉर एड फिल्म जो कि रूपाली मैम प्रोड्यूस कर रहे थे और मैं उनके साथ काम कर रही थी. और जैसे ही हमारा शूट खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे हग किया एंड शी सेड दैट आई लव्ड योर वर्क, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर वेरी सून. उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा एंड विद इन 10 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वेरी बिग प्रोडक्शन, दैट इज जेडी मजेठिया सर प्रोडक्शन. दे कॉल मी एंड उसके बाद हैट्स ऑफ प्रोडक्शन, एज यू माइट हैव हर्ड.
और फिर उन उसकी वजह से, इस सारी चीज़ों की वजह से मुझे सरिता जोशी जी के साथ में काम करने का क्या मौका मिला, बात जो है, कि वंडरफुल, वाओ। तो वो लीड में थी। आई वाज डूइंग पैरेलल जी लीड विद जी। हर, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो इसका पूरा श्रेय मैं उनको दूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉमिस नहीं रखा होता तो शायद मुझे वो शो नहीं मिलता। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग कहूंगी मैं। लाइक गॉड इज ऑलवेज देयर विद मी, माय डैडीज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विद मी, कि उसके बाद से थिंग्स आर गेटिंग बेटर। कुछ भी बुरा हो रहा था तो साथ में कुछ बहुत अच्छा भी हो रहा था। इट वाज लाइक दैट। तो वक्त चलते चलते सब कुछ, जैसे कहते हैं कि जी। जहां आपके अपने अपने बड़ों का साथ होता है ना, वहां आप को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तो गुरु इट इज पूर्णिमा एग्जैक्टली। वाले दिन आप रूपाली गांगुली जी के घर जाती हैं और उनके पाँव छूती हैं। ना, एक्चुअली उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाता, वो काफी सारे शूट पे रहती है। बट आई कीप इन टच विद हर, और हम लोग मैसेज पे काफी बातें भी करते हैं। और शी इज सो स्वीट, सो वंडरफुल। मैं आपको क्या बताऊं, जब भी उनसे बात होती है हमेशा ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ मुझे इंस्पायर करेंगी, कोई नई चीज मुझे मुझे नया सा ज्ञान दे देंगी और कुछ अच्छा हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। सो हाउ हैज तो योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर जानकी? जानकी जो सीरियल आप कर रही हैं उसमें आपको अप्रिसिएशन मिल रही है हर जगह से, जी हर जगह जी से बहुत बहुत प्रशंसा हो रही है आपकी। प्रेस के अंदर भी वी जस्ट सॉ फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस एवरीबडी इज प्रेजिंग योर वर्क। हर एक कोई बोल रहा है कि ज़बरदस्त टैलेंट है, ज़बरदस्त प्रेजेंस है, स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। तो आपकी लाइफ कैसे बदली है इसके बाद, ज़रा बताएं प्लीज़। लाइफ बदली है ऑफ कोर्स, बिकॉज आप एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन में काम करते हैं, आपको एक अच्छी टीम मिलती है, सबका साथ अच्छा मिलता है, को एक्टर्स अच्छे मिलते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि आपका काम अपना आप एक लेवल अप हो जाता है। और इस शो के जरिए मुझे एक चीज तो पता चली है कि अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा है, अपनापन है उसमें, तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो जहां तक मैं प्रोडक्शन का कहूंगी, सब तरह से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। दे ऑल आर लविंग माय वर्क, दे आर ऑल आर पुशिंग माय वर्क, इवन द राइटर्स एंड ऑल। व्हेनेवर वी डिस्कस, जब भी हमारी बातचीत होती है, तो वो मुझे बताते कि अब हम ये करने वाले हैं आपके कैरेक्टर में। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट लेकर आते हैं, कुछ नया लेकर। शायद उन्हें भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं रोज चैलेंजेस दीजिए इस तरीके का। तो So you are आई एम living the एंजॉयिंग dream. एवरी If टाइम। effectively you you या you are from कोटा, आप या कोटा से हैं, जी और कोटा से आप यहाँ आई बॉम्बे में, तो मतलब अपने जहन में, अपनी आंखों में न जाने आप क्या सपने लेकर के आई होंगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे सपने आपके साकार हो रहे हैं अपने आप। मतलब पता नहीं किसका आशीर्वाद है आपके ऊपर, मुझे लग रहा है भगवान का आशीर्वाद होगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, किसका है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जी so what does it feel like? I mean, you have to pinch yourself and say, hey, listen, this is really happening to me. What do you have to या do? समटाइम्स आई डू। कि मतलब how is this happening? You know? हाँ, मतलब क्योंकि ये क्या कैसे होता हो है, जाता है। ऑफ क्या कोर्स। होता है कि we met so many people जो 10-10, 20-20 साल बेचारे स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जाकर के कोई ओपनिंग मिलती है, कहीं जाकर के स्ट्रगल करते हैं। आपकी भी जरूर कोई ना कोई स्ट्रगल हुई होगी, बट इट मस्ट हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल। व्हाट वाज योर स्ट्रगल लाइक? अगर आपने स्ट्रगल की है, मतलब आई एम श्योर एवरीबडी स्ट्रगल्स, ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रगल के कुछ ना कुछ होता है। सबसे पहले ये बताएं कि बॉम्बे आना, मुंबई आना, ये बहुत बड़ा निर्णय होता है। तो आपके माँ बाप ने कोई आपके माँ बाप ने इसको रेजिस्ट नहीं किया? उसको आपको बोला नहीं कहाँ कौन से शहर में जा रहे हो, दिमाग खराब है? हाँ, बोला था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बाप रे ना जाने क्या हो जाएगा तुमको, ऐसा बोला नहीं तुमको? हाँ, स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बोला था, और उनका यही था रिएक्शन कि वाई। और बट कह सकते हैं कि बाद में जब आई और जल्दी ही काम मिल गया, तो शायद उनको भी लगा कि नहीं, ये कर सकती है। तो फिर ऑटोमेटिकली वो मुझे सपोर्ट करने लगे। ये भी एक ब्लेसिंग है, इसको भी ब्लेसिंग ही कहेंगे। तो और जहाँ आप अपनी मम्मी के साथ यहाँ रहती हैं या who do you stay with जी here? जी नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। Very मम्मी sure. आती रहती हैं, Wow, very काफी brave girl. विजिट करती You हैं। are such a You brave know, your girl. father seems to be an inspiration. Now, you quote your father all the time. Your father told you, Yes. whatever happens, never cheat on your profession. Whatever Of course. happens, never cheat on. That's a fantastic, fantastic line for anybody who is new Yes. to the industry, and especially this kind of motivational kind of an inspirational thought that he gave you. Whatever happens, never cheat your profession, and that keeps you occupied. Even after Yeah. your father's death, you are on
on the work immediately as fast as you can, in spite of Mr. Ghai telling you, no, you can take your own time. This particular thing motivated you to come back and, start your work. Don't cheat on your profession. That's what he said. Yeah, he always used to keep telling me that जो भी करो दिल से करो और कहीं पर भी cheating नहीं होनी चाहिए, काम करो. What does that mean really? I really would love to know. What do you think your father meant जब उन्होंने आपको ये कहा कि अपने प्रोफेशन के साथ धोखा मत कीजिएगा? इसका क्या मतलब हुआ? वो जरा समझाएं. वो ये कहना चाहते थे कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कई बार हम लोग थोड़ा सा चीटिंग इस तरीके से हो जाती है कि हम थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, या हम कभी ऐसा बोल देते हैं नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी, या आज मेरे घर में ये बड़ा कुछ हो गया है, नहीं जाना है. पर जब पापा का ये इंसिडेंट हुआ एंड मुझे पापा के वर्ड्स रिकॉल हो रहे थे, और जब मैंने पापा का तिया किया तो आई थॉट नहीं, पापा ने बोला है कि अपने काम को रिस्पेक्ट करो. आपको वो आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि हम आपका वेट करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि सुभाष भाई सर आपको खुद बोल रहे हैं कि वी विल वेट फॉर यू. तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आपकी जिंदगी में क्यों ना आ गई हो, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने प्रोमिसेस रखने हैं, बहाना नहीं बनाना है, काम के लिए जाइए चाहे कुछ भी हो जाए. वुमन एम्पावरमेंट, आज आप देखोगे पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर से लेके पार्टी से पॉलिटिकल पार्टीज एवरीबॉडी सेइंग महिला सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट, महिला को आगे बढ़ो. तो हाउ इज दिस पर्टिकुलर प्ले दैट यू, आई मीन जानकी दैट यू आर डूइंग, हाउ इज इट क्लोजर टू वुमन एम्पावरमेंट? Are you feeling it also? One is acting and other is feeling what you're doing, getting involved in the character. How is this woman empowerment thing working where Janki is concerned? A lot, because what's happening is शो के अंदर में कई उतार चढ़ाव आते हैं हमारी फैमिली में, जहाँ की जानकी जो है कि एक फॉस्टर बच्ची है और वो हमारे घर आती है और हम उसे पालते हैं, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है तो आई रेज हर, और साथ में मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ. माई हस्बैंड इज नॉट कीपिंग वेल इन हिज बिजनेस, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके काम में वो उधार ले लेते हैं मार्केट से बहुत कुछ, लेकिन वो बैलेंस करना लाइक कि मुझे अपना प्रोफेशन भी करना है, अपनी बच्ची को भी पालना है, अपने हस्बैंड के साथ भी इमोशनल बॉन्ड बना के रखना है, उसे झुकने नहीं, ऐसा फील नहीं होने देना है कि कहीं से वो कम है. तो वो एक बहुत बैलेंस चीज है जो कि एक रियलिटी बेस्ड है. देखा जाए तो हर घर में एक मधु है, तो दिस इज माय कैरेक्टर इज कॉल्ड मधु. हर घर में एक मधु है जो कि अपने परिवार को बैलेंस करके चल रही है. वो अपना प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस कर रही है, साथ में अपनी फाइनेंसेस को भी हैंडल कर रही है, साथ में अपने बच्चों को भी बड़ा कर रही है, उनकी एजुकेशन भी देख रही है. कहीं भी चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटती, हार नहीं मानती, थकती नहीं है कभी. So it is exactly the same character which I'm playing right now, and I think it is very much connected to each and every woman of this era nowadays. Wonderful. So tell us what the channel thinks of you. They are loving me. What do they say? What do they expect from you? Of course, they are giving me more and more challenges. As my writer told me that they are coming up with more of the twists now. As my Janki, my daughter is now raised up. She is much more younger, like she's 21, 22-year-old. And now I have to play the mother. That was the biggest challenge for me, because I have to play mother of this age character. But I thought... You have to play the mother of a 21-year-old. Exactly. And you yourself look 16 years old. Isn't that wonderful? Wow. Okay. Thank you. I'd love to be so on television. Where is that kind of television? I really would love to know. All right, Pradeep, one second. I really want to hear more of this. So you have to play the role of a 29-year-old or a 30-year-old or a 31-year-old or whatever, and you have to look after this girl. That's how. No. So is there an aging process? 50-year-old. I'm playing 50-year-old in this. You are playing a 50-year-old, right? Exactly. So what do they do? They age you. You have special makeup on and stuff like that. Is that what they do? What happens? So many things. There's so many challenges are there. You won't believe the first and the biggest thing which is we are actually facing, as if we have to shoot barefoot. Why bare feet? Because ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि पूजा पाठ वाला फैमिली है, ऑर्थोडॉक्स है. घर में चप्पल अलाउ नहीं है, घर में ही मंदिर है, तो बिना चप्पल के आपको शूट करना था. तो वी शूट विदाउट any footwear. Exactly, without footwear. We are shooting like that. So whether it's cold or whether it's hot or whether वो कुछ भी है, मतलब
नंगे पैर। मिट्टी है ऑफ कोर्स, एंड यू नो अब बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, वो लोग तो शूज पहन के चल रहे हैं, बट वी आर आल्सो देयर, उनका वो जो भी है व्हाटएवर दैट्स स्टिकिंग टू आवर जी। feet and everything is there. So, That's okay. so by doing that, of course, you are Yeah. establishing yourself as a fabulous actress, right? आपकी जो acting ability है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है. Everybody says that. But any girl who comes over here, you know, she wants to play a female lead opposite, you know, some hero, somebody like Siddharth Malhotra, somebody like say Shah Rukh Khan, Salman Khan, somebody like that. I'm sure you must be having those dreams too. So when do you think you'll get to do that? Sir, I would say one thing only. जब किस्मत में लिखा होता है तभी होता है. That's it. So whom do you think you would like to play the female lead to? आपका कौन सा हीरो है जो आपका फेवरेट हीरो है? मुझे तो सभी अच्छे टेलीविजन में लगते हैं, नहीं। देखिए। ये डिप्लोमेटिक आंसर हो गया ना, ये तो बचपन से किसको लाइक करते हो यार, ये तो बताओ। ये तो फिल्मी टाइप आंसर हो गया, सभी अच्छे हैं मतलब। ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक सिनेमा से जुड़ना चाहूंगी। वैसे तो इरफान खान जी के साथ में बहुत काम करने का मन था, लेकिन अब तो चले गए, अब तो बिल्कुल वो चले गए। वो तो चले गए, चलो जी हाँ जी। इरफान बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे हमारे। हाँ, इसी शो में 4 या 5 बार आ चुके हैं जी। अच्छा, अरे जी, वाह। पहले वो इंसिस्ट करते थे कि मेरा नाम सिर्फ इरफान लिखना, इरफान खान मत लिखना। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये होता था कि अगर मैं खान लिखूंगा तो लोगों को ये लगेगा कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान के फेम से मैं कुछ लेना चाहता हूँ। जिस दिन मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा उस दिन मेरे नाम के आगे खान लगाना। बस इसीलिए मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, इसीलिए उनके साथ काम करना चाहती थी। उसके अलावा मनोज बाजपेयी जी के साथ मैं काम करना चाहूंगी। ऑफ कोर्स नवाजुद्दीन सर के साथ मैं काम करना चाहूंगी। क्या बात है सर। You are listing out all my favorite actors. मेरे जितने फेवरेट एक्टर्स हैं सबको लिस्ट कर रही हैं आप। जबरदस्त जी प्रदीप जी। And more creative. You seem to be a very creative kind of a person. Where you like more passionate about acting. अभी जो stars के साथ आप काम करना चाहती हैं, they are all very talented in that particular field. More than being glamorous. So what we always ask, what are the best, any inspiring dialogue? जैसे लोगों से हम पूछते हैं कि फिल्म लाइन में कौन सा बेस्ट, जैसे राजेश खन्ना का बाबू मशाए जिंदगी और मौत, something that gives a meaning to life, gives a meaning to whatever you do. अरे पूरा डायलॉग बोला ना प्रदीप जी। बाबू मशाए जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में जा बना उसे ना आप बदल सकते हैं भाई, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनके डोर ऊपर वाले की उंगली में बंदी है, कौन कब कैसे उठेगा किसी। Many people are inspired by these kind of dialogues. How are you inspired of any of these dialogues? It is not about dialogue and all. See, I don't ratify anything. But the thing is, the kind of craft which they are actually... See, everybody is fantastic at their job. I will not justify, and who the hell I am to justify anyone's act. But the thing is, एक इच्छा होती है हर एक्टर की, सीखने की, कुछ करने की चाह होती है। तो मुझे लगता है कि इन सब सर के साथ में काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा लाइफ में। आई एम अ लर्नर पर्सन, सो आई वुड लव टू लर्न एवरी डे कुछ ना कुछ नया। तो लकी मेहता जी ये बताएं, देखिए साहब, टेलीविजन इज शॉट इन अ डिफरेंट वे, फिल्म इज शॉट इन अ डिफरेंट वे। टेलीविजन में आपको बहुत लीवे मिलती है, आपके कैरेक्टर की डेवलपमेंट में बहुत लीवे मिलती है, बिकॉज यू हैव 1 एपिसोड, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब फिल्म में तो एक बार कट हो गया, कैन हो गया, सीन हो गया, अब उसके बाद आगे बढ़िए चलिए। सो और जहाँ तक स्क्रिप्ट का सवाल होता है, कभी कभी क्या होता है टेलीविजन में, दैट्स व्हाट आई हर्ड एंड आई हैव सीन दैट समटाइम्स अ ट्विस्ट, जो ट्विस्ट की आप बात कर रहे थे ना, वो ट्विस्ट इज रिटन ऑन द सेट इटसेल्फ उसी वक्त। सो हाउ डू यू वर्क दैट आउट? फॉर दैट यू हैव टू हैव ए वेरी गुड माइंड एंड अ वेरी गुड मेमोरी। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू डू इट? Could you explain the process to us, please? सीरियल में तो मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट दे जस्ट चेंज द होल स्क्रिप्ट। आपको 5 मिनट के अंदर में 10 पेज का डायलॉग आ जाएगा कि नहीं आपको ये वाला प्रिपेयर करना है, वो वाला हमने पूरा कट हो गया, नया आ गया। बट मेंटली इफ यू आर प्रिपेयर्ड कि आप अपने कैरेक्टर में ऑलरेडी हो, देन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू लर्न दैट स्क्रिप्ट। यू डोंट हैव टू मग अप ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू आर देयर, आप जहां हो वहां हो, इसका मतलब कि आप अपने कैरेक्टर में हो, इट मींस यू कैन डू इट इजीली। एंड व्हाट अबाउट मूवमेंट? लकी जी, व्हाट अबाउट मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? हाउ डू यू मैनेज दैट? बिकॉज़ आई हैव हर्ड, no, let me praise you a little bit, थोड़ी सी आपकी तारीफ हमें करने दीजिए।
क्या है कि मैंने ये सुना है कि जहाँ तक आपका सवाल है, यू आर एक्चुअली लिविंग द कैरेक्टर, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी मूवमेंट्स हैं, दे आर सो गुड कि कभी कभी भले आप डायलॉग बोले या ना बोले, सबको मालूम पड़ जाता है आप क्या कहने वाली हैं. सो हाउ डू यू मैनेज दैट, वो जरा बताएं. बस इतना कहूंगी, कैमरा मुझे बहुत प्यार करता है शायद इसीलिए इस तरीके के मूवमेंट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. और क्या होता है, जब आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, आपका किरदार आपको पता है कि मुझे पसंद है, आप जो प्ले कर रहे हो वो आपके पसंदीदा हो, उसमें चैलेंजेस हो, उसमें वो सब कुछ हो जो आप चाहते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आप मोल्ड डाउन हो जाते हो. वरना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता इतनी बड़ी लड़की की माँ प्ले करना. लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने ये कैरेक्टर को समझने की कोशिश करी, आई रियलाइज कि शायद मैं ढल जाऊंगी, क्योंकि अभी ये मेरी शुरुआत है. कल को मुझे अगर मनोज वाजपेयी जी के साथ में काम करने का मौका मिल गया तो मैं कैसे करूंगी? लाइक एट दैट टाइम. You heard it, Manoj. Yes. Manoj Vajpayee, you heard it. You have to work with this girl whether you like it or not. Is that clear to you? She's among the very intelligent kind of a person, very intelligent kind of a person. Now, I'm fascinated how, I mean, why you opted for acting, you know? What was the inspiration for coming to this profession of acting? एक्टिंग में आपको सारे किरदार करने को मिल जाते हैं, सब कुछ जो आप बनना चाहते हो. आप डॉक्टर बन जाओगे, आप मदर बन जाओगे, आप एक्ट्रेस हीरोइन बन जाओगे, आप सब कुछ बन जाओगे. तो एक्टिंग से बेहतर और क्या हो सकता है? आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. कहने का मतलब ये हुआ कि कोटा की कोचिंग क्लासेस में से पढ़ने के बजाय सीधा आप एक्टिंग करें instead of studying for engineering or to become a doctor. All right, this is not for everybody. Listen to me, you kids who are watching. Everybody cannot be Lucky Mehta. All right. आप अपनी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए, सीधा एक्टिंग के लिए मत आइएगा प्लीज. नहीं, आप जो कर रहे हैं बस आप उसमें दक्ष होने चाहिए. दैट्स इट. आप जो करो उसे दिल से करो, कुछ भी करो, चाहे जबरदस्त. ठेला भी चलाओगे तो ऐसे चलाओ कि कोई और चला ना सके. सब्जी बेचो तो ऐसी कि कोई बेच ना पाए. क्या बात है, जबरदस्त. तो लकी, do tell us what happens after Janaki. After Janaki, I'm waiting for something good, of course. अभी तो चल रहा है, and I have learned some good things also about Janaki. Maybe something more into Janaki. So अभी तो जब तक ये है तब तक मैं हूँ, मधु हूँ Janaki के अंदर. Let's see afterwards. Maybe definitely things are coming to me, but I am just looking forward for something very big now. So your next project, you hope will be on television or will it be on the big screen? Maybe on the big screen. Wow! Congratulations. And thank you. And really all the best to you. You're doing a wonderful job, and everybody is appreciating your work. And I would love to mention one thing, that I have already done a film, and that was a very wonderful experience for me. For the first time, I was working with Aditya Seal in Rocket Gang film, and everybody was wonderful. It was a debut directorial of Bosco Martis sir, who is the choreographer, very well known person. And he loved my work. That was the biggest thing for me. And afterwards, I am working like this kind of character, like emotional character is being developed from that film only. So I was doing Janani with Supriya Pilgaonkar ji, and thereafter I'm doing this Janaki, the same as again emotional character. So I think this emotion has been developed from that, and because I was working with these living legends, like Supriya Pilgaonkar ji is wonderful actress. She made me learn so many things about emotions, like caring things. And Sarita Joshi ji, wonderful timing for comic. So I have learned comic thing from her also. So like each and every place, each and everywhere, I am learning things and just moving ahead. So I think we should be learner to get something bigger in our life. All the very best to you, Lucky Mehta. All the very best to you. It's been a great pleasure talking to you. And same here. And I still can't believe that you are playing the mother of a 21-year-old. You yourself look about 16 or 17. And I can assure you my eyesight is perfect. Out of school. Right. Just out of school. Thank you. So Thank you very much. All the very best. Namaskar. Same to you. Namaskar. She really does look very young, doesn't she? I mean, she looks as though she's out of school. Very intelligent. As you rightly mentioned. That's very fast. She's just probably passed her 10th boards and she's come over here and she's probably pretending. But acting is pretending, isn't it? Acting is acting all times. Yes.